Done. Hi guys, so today we have another chartered accountant, Srushtinder Goat, who has recently qualified and he joined our JS Prime mentorship program and he has got placed in EY India, I State Audit Pune. So he will be sharing his experiences about the program and how he got benefited. All up to you, Srushtinder. Yeah, hello sir. It's been nice meeting you. Thank you for all the guidance that you have provided. Fortunately, I've been placed at EY Pune in statutory audit domain, and after clearing CA, my first issue was to getting placed. So that's where you came in and helped me to giving lot of resources and mock interviews and everything, which helped me a lot. And also there were many issues that I faced while approaching people and also with my communication skills and everything, where you helped a lot. So actually, most of my credit goes to you only. Thank you so much. Like you had Yes, initially, I talked to you, you had also career related concerns also, which career to pursue. There was a lot of correct, things. correct. Right. Yes, So even that we help you. So what is you think that why one-to-one was so good? Okay, because what is so important in one-to-one mentorship? Like many CFSs are very confused which profile to go and then how to study, where to study. Then practice is also required. So you can elaborate on each and correct. every aspect, so that it can easier for Yes. the CFSs also to take a decision. And So what main mistakes that problem you what and have I also wanted to just to interrupt. I wanted to know what are the mistakes any CFSer generally does also. yeah. So my what issue I faced, I'll tell you personally my experience. What issue I faced after getting placed was not to process. First, it was clear in my mind not to trust the campus process. Get into first it was you only told me to apply off campus first. So basically getting into that and then after preparing for interview was very important. Improving on your what to know, what to prepare from where to prepare, how to prepare, and then how to present your answers, and being only this virtual communication, how to make it more effective. So that you provided one to one. Like I remember that when I contacted you first, you talked with me for around 2 to 2.5 hours, just explaining to me why, which domain to select and how to guide me. So that made that inculcated a picture in my mind to be precise into this. So that helped me a lot. Yeah, which domain to select really that really helped because Yeah, many people correct. CAs are actually confused which domain to go and they actually try to get into domains which are only made for rank holders. So it is very difficult to get out there and also they miss out on many good opportunities which are there in the market. And attempts is not the criteria. I always say it is about how you present yourself in interview. If you have more attempts also, then also you can do well, I feel. So Yes. you just have to be focused and definitely Big Four you can get into. I always say, and all other firms, Yeah, it is very easy. And communication skill is just that you have to, even language is not a problem if you just keep on practicing and improving yourself. I think it is great. correct. Okay, right, right. And what are the mistakes that you feel that anybody normally makes? Okay, as a CFSer, you have seen. Okay, your friends also. So what are mistakes generally they are doing? Like what you can improve Okay. upon? Okay. So considering the mistakes, I think that there is no proper people look into areas uh, where everybody is looking. They don't look into areas which are more important. Like now in statutory, like in my domain, there were openings, but it wasn't open for long. And also people do not take the right guidance also. They refer to the different whatever asked in the interview and what they refer is totally different. And you Right. should know the basics first. Basics is very important. Like the interview will not test your technical skill, they test your basic knowledge only, and they will ask you just one or two journal entries. That is more important. So understanding the basics is very important. And one more thing I would like to say is that mistakes I did was uh, to to not see. I'll tell you what. To not improving on ourselves. Like you continuous practice was required. So I once one interview I had given earlier. It was of good firm. So I gave it without any practice. So I didn't clear all that one. So I didn't know what to answer only. So Right. if you don't know how to, if you haven't practiced, then how can you uh,
for war also you have to sharpen your blades first. So Right, आप right. बिना yeah बिना बिना sharpening your knife, how can you go into war? So first you have to sharpen yourself by practicing, giving mocks, and continuously improving on yourself. That is Yeah, the right. main thing. What happens like in chartered accountants also the communication skill is not really practiced. Okay, in EGMCs also you don't get enough opportunities, and also in class 12 also you're not done that much of debate or elocution, so you don't have done that much of practice while speaking. And second problem which many CAs generally face is the memory. They tend to forget things very quickly because most of them Correct. have ratified and cleared the CA exam. And the third Yeah. problem comes with the articleship knowledge. Okay, because most of them they have not done articleship properly, and they are also grilling down your articleship experience also. So Correct. Correct. on seeing on the communication skill, articleship knowledge, and your English speaking also, many people are very weak in English. So all these parameters coupled up and lack of practice, this really makes the things worse for everybody. And many actually Correct. Correct. many CAs I have seen many of them, they actually wait for the call and then they will prepare, and that is the biggest mistake. No, no, You no. cannot wait for Totally. the call to prepare for things, because call Correct. will Correct. come. You Correct. have to be to use for your first and the resume is also not made properly, because resume is a very Properly. important Correct. piece of document. Resume is the first Yes. impression that you give to the interviewer. So if the keywords are not there of state audit, internal audit, direct tax, indirect taxation, then they are not even if they shortlist your resume and give you a chance in the interview, then also there is a high chances they will not get impressed by your resume, and they will Correct. not be willing to take you. Even that resume is a very very powerful piece of document that you have in your hand. So the keywords experiences has to be properly highlighted. Many people actually write only I have Correct. done state audit of this company, but what exactly I have done, that is not mentioned. Better done. And that is the problem many people face while giving interview. The Correct. impression is already bad. Your 50% impression is Correct. created from resume itself. So resume is Yes, sir. almost bad that time. So it becomes very difficult for you to get selected unless and until you have done very well with your interview. So resume does the Correct. 50% of the job, I always feel, because if the Yes. resume is properly prepared, the experiences are properly highlighted, तो सामने वाला हमेशा पहले से ही इम्प्रेस्ड रहेगा आपका रेज्यूमे देख के. Yeah. It's like a That website is for true. you. Yes. I would say resume is Correct. a website for you, a brochure for you, sales brochure. तो वो जितना अच्छा बनाओगे और फिर उसके बाद आपको बस जो रेज्यूमे में लिखा है उसको अच्छा से दिखाना है, वो प्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट मेरे हिसाब से सीए सबसे बड़ा गलती करता है, रेज्यूमे सही से नहीं बनता है. अगर रेज्यूमे अगर नहीं सही से नहीं बनाता. बनेगा तो वो शॉर्ट लिस्ट भी अगर कर देगा आपको, इवन इफ ही शॉर्ट लिस्ट यू बाय एनी मींस, यू कैन गेट शॉर्ट लिस्टेड, बट इंप्रेस नहीं होगा सामने वाला रेज्यूमे देख के. बिकॉज अगर मेरे पास भी कोई Correct. अगर मेंटी आता है तो हम कैसे जज करता है किसी को, वो रेज्यूमे के बेसिस में जजमेंट होता है. अब मेरे को अगर Correct. उसका रेज्यूमे देखेगा, मेरे को पता चल जाएगा उसका क्या भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है. राइट. तो जो Correct. इंटरव्यूअर है, आपका इंटरव्यू पहले ही हो जाता है. आपका इंटरव्यू लेने से पहले आपका इंटरव्यू एक्चुअली हो चुका होता है हो जाता रेज्यूमे देख है. के. हाँ. Yes. तो ऑन द बेसिस Correct. ऑफ द Correct. रेज्यूमे ओनली ही इज जजिंग यू. तो अगर आप रेज्यूमे Correct. सही से Correct. नहीं बनाएगा तो आपका तो 50% इंप्रेशन ऐसे ही खराब हो गया. तो बाकी 50% का बात ही नहीं उड़ता है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ रेज्यूमे इज द मोस्ट पीस Correct. इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट. तो उसमें अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंसेस डालने का कोशिश करिए, और उसके लिए सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट लाई Agree. ऑन द रेज्यूमे ऑल्सो. तो वो चीज मेरे को लगता है वो सबसे बड़ा गलती कर रहा था. आई थिंक दिस विल तब रियली हेल्प मैं अ लॉट. बताता हूँ. मैं एक बिल्कुल. इंटरव्यू में गया था उधर, जो मेरे रेज्यूमे बताया था स्टार्टिंग को, अब हाँ. उसके बाद चेंज किया वो उधर. इंटरव्यू ने मेरे सामने जो ये हाईलाइट किए थे पॉइंट्स, तो उससे अच्छा आप पहले से ही हाईलाइट करके रखो, सो हाँ. दैट इंटरव्यूअर को इजी पड़ जाए. हाँ, और रेज्यूमे से क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा. तो रेज्यूमे इज अ वेरी पीस ऑफ करेक्ट. करेक्ट. डॉक्यूमेंट, वहां से आपको क्वेश्चन भी पूछा यस. यस. जाएगा, वहां पर आप जवाब नहीं दे पाओगे तभी दिक्कत है. और बहुत जन एक और गलती क्या करता है, मिस्टेक्स लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑडिट इंटरव्यू, एंड दे हैव नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट स्टेट ऑडिट, दे हैव रिटन अबाउट स्टार्ट टैक्सेशन. ऑडिट. तो शॉर्ट लिस्ट भी अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट नहीं होगा. अब इंटरनल ऑडिट है तो करेक्ट. इंटरनल ऑडिट का कीवर्ड जानना पड़ता है. और आज का डेट में क्या है कि वैकेंसीज कम है मार्केट में. देयर आर ऑलरेडी वेरी लेस नंबर ऑफ वैकेंसी, मे बी 500 1000 वैकेंसीज, 1500 वैकेंसीज. And the CA who are unemployed till now, this attempt, another attempt, so many attempts are there. There might be 20 to 25,000 CAs. So this is a big number of CAs and less number of vacancies. अब वैकेंसीज कम करेक्ट. है, सीए ज्यादा है, तो वो लोग जो ले रहा है जिसको, उसको देख रहा है कोड एक्सपीरियंस है कि नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं है. तो अगर आपका सीवी सही नहीं होता है तो वहां पर में आप ऐसे ही आप गलत हो जाए, आपका मतलब काम खराब हो गया. मतलब इट्स ऑलमोस्ट वेरी करेक्ट. डिफिकल्ट देन टू क्रैक द इंटरव्यू. तो सीवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट. और वहां पर मैं आपको एग्जैक्टली जो सीवी जो रिक्वायरमेंट है रिक्रूटर का, वही आपको
अच्छा से पोर्ट्रे करना बहुत जरूरी है। अच्छा। कस्टमाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन द सीवी। स्टैट ऑडिट का अलग, इंटरनल ऑडिट का अलग, फाइनेंस डोमेन के लिए अलग, टैक्सेशन के लिए अलग, एमएनए टैक्स में अगर किसी को जाना है तो उसके लिए सीवी अलग अलग बनेगा। एक सीवी आपका काम नहीं करके देगा। वन सीवी विल नॉट करेक्ट। solve your purpose, and that is why you need to do the targeting very properly. So this is the biggest mistake any CA fresher does, because ये गलती करेंगे तो प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन, नॉलेज, क्लैरिटी, एंड क्लैरिटी नहीं होता है बहुत लोगों को, वो भी एक बहुत बड़ा गलती है। बहुत आई बड़ा थिंक चीज। वन बिगेस्ट मिस्टेक एनी पीपल, एनी सीए फ्रेशर एक्चुअली आई फील जो करता है, और ये हर कोई करता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, रैंक होल्डर हो, बिग फोर से किया हो, कोई भी जगह से करके आया हो आर्टिकल से, उसको लगता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यू विल गेट द जॉब, एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डूइंग, बिकॉज अभी सीएस बहुत ज्यादा हो चुका है। इट इज सीए टू के साथ मेनी जॉब नहीं सीएस आर आता ऑल। हाँ, so on the basis of degree, on the basis of articleship, on the basis of your ranks, on the basis of your marks, on the basis of your attempts, आपका जॉब लग ही नहीं सकता। आपका हो सकता है शॉर्टलिस्ट हो जाए सीवी, ओनली फॉर द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग इज देयर। उसके बाद अगर आप में कैपेबिलिटी है वो क्लियर करने का, देन ओनली यू विल क्लियर। इरेस्पेक्टिव ऑफ, मैंने देखा है जिसका अटेम्प्ट ज्यादा भी था, 7-8 अटेम्प्ट था, उसका भी बिग फोर में ले लिया, जबकि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसको नहीं ले रहा है। एंड द सिंपल रीजन इज दैट कि वहां पर में वो लोग देख रहे हैं आपका टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, प्रैक्टिस करके आए हैं, आप किस तरीके से पर्सनैलिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं, योर ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इज चेक्ड आउट देयर। आपका ड्रेसिंग सेंस भी चेक हो रहा है, तो एवरीथिंग दे आर चेकिंग। तो वो सब पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक डिग्री के बेसिस में आपका नौकरी लगना इतना इजी नहीं है आज का डेट में, नहीं कंपेयर है। टू व्हाट इट वाज इन 5 to 6 years बैक। अगर मैं बोलूं तब थोड़ा इजी था, आज का डेट में थोड़ा सा आपको ये सब के ऊपर में काम करना बहुत जरूरी हो गया है। तो यू करेक्ट। नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब, एंड आई ऑलवेज फील दैट यू शुड डू जॉब एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years एनीबडी। तो इससे क्या होता है, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज भी होता है। उसके बाद आपको कुछ खुद का अगर करना है तो दैट इज अ बेटर सजेशन, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और आपने सीए की है, तो मेक श्योर दैट यू शुड एटलीस्ट डू जॉब फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। एटलीस्ट आप 3 अपना इयर्स। जो लगा है, आपका पैसा मेहनत हुआ है, यू आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट, और ऑल्सो आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सको, नॉलेज गैदर कर सको। तो दिस इज ऑल्सो माई सजेशन ऑलवेज, कि यू शुड बी डूइंग जॉब एट द इनिशियल स्टेज। फिर आपको अगर अनलेस एंड अनटिल आपके पास एकदम बैकअप प्लान बहुत स्ट्रांग है कि आपको यही करना है, अगर वो नहीं है तो यू शुड बी डूइंग 2 to 3 years ऑफ जॉब। वीकेंड्स को आप कुछ ना कुछ अलग करने का कोशिश करिए, को अगर मिल रहा टाइम, पर एटलीस्ट 2 to 3 years यू शुड बी ट्राइंग टू गेट इनटू सम जॉब, लर्न थिंग्स, एंड देन सैटरडे संडे कुछ बिल्ड करने का आपको लग रहा है तो दैट इज अ बेटर वे ऑफ प्लान। बिकॉज मेरे को भोजन पूछता है कि मुझसे ये करके जॉब करे या कुछ और करे, अगर आपके पास प्लान एकदम रेडी है देन यू शुड डू, unless and until you don't have a particular plan in mind, you should not be doing. Another नॉट mistake I बिल्ड। wanted to point out this in this, okay, मैंने भोजन को पूछा है कि आपको नेक्स्ट 5 years में क्या करना है, इवन इन इंटरव्यू दे आर आस्किंग दिस, पर जनरल में अगर किसको पूछूं कि 5 years में क्या करना है तो वो बता नहीं पाता है, नो बडी इज एबल टू टेल दिस। करेक्ट। मैं अगर उसको पूछूं कि कौन सा डोमेन में तुमको जाना है तो वो नहीं बता पा रहा है, वो ये बोलता है कि मेरे को इधर नहीं जाना है। आई हैव हाँ। सीन दिस, वो बताता है मेरे को ये नहीं करना करेक्ट। है, मेरे को टैक्स में नहीं जाना है, मेरे को ऑडिट में नहीं जाना है, मेरे को फाइनेंस में नहीं जाना है, मेरे को इधर नहीं जाना है। वो ये नहीं बता पा रहा है कहाँ जाना है, एंड दिस, और उसको लगता है ये क्लैरिटी है उसका, एंड दिस इज नॉट द क्लैरिटी, दिस इज योर ईगो आई फील। ये कहीं ना कहीं ईगो है, ये नहीं करना है, पर ये नहीं पता ये क्या करना है, वो नहीं पता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव सीन विद द इवन द टॉप क्रीम स्टूडेंट्स का अच्छा अच्छा मार्क्स आता है, उसको भी मैंने देखा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा फेस हर कोई कर रहा है कि सीए बनने के बाद पता ही नहीं क्या करना है। ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको पता लगाने के लिए एटलीस्ट एक हफ्ता खुद को दीजिए सीए बन के, कि एक हफ्ता आप खुद को टाइम दीजिए, खुद को एनालाइज करिए, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट देख के प्लीज एनालाइज योर सेल्फ कि आपको करना क्या है। डिस्कस विद द सीनियर्स, एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, with your family, with your brother, sister, whoever it is, okay, discuss with the family members also, क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए एक हफ्ता खुद को देखिए, पहले सोचिए कि करना क्या है लाइफ में, नेक्स्ट 5 years क्या करना है। ऐसे मत करिए कहीं पर भी चल जाएंगे, हमको इधर भी चल जाते उधर जो मिलेगा चल जाएंगे, वैसे नहीं करिए। प्लीज हैव अ प्रॉपर प्लान इन माइंड कि 5 years में करना क्या, यू शुड हैव अ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो ब्रेन में होना पड़ेगा करेक्ट। कि ये प्लान बी है मेरा, प्लान बी, प्लान सी। अगर वो प्लान्स अगर रेडी नहीं रहेगा ब्रेन में, तब आपका देखना आप एक्सप्लोर ही करते रह जाएगा, और एक्सप्लोर करते करते फिर टाइम निकल जाएगा आपका। वैसे ही मार्केट में अभी ले ऑफ चल रहा है, वो चल रहा है, तो इट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सीए का डिग्री है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट डोंट टेक दिस, मतलब इसको कैजुअली मत लीजिए, बिकॉज भोजन कैजुअली ले लेता है, दैट इज द बिग मिस्टेक। ये डिग्री आपको डेफिनेटली मिल रहा है कि आप रिस्क ले सके,
पर आपको अगर पता ही नहीं क्या करना है तो फिर वो सीए का डिग्री कुछ कर नहीं पाएगा। यू नीड टू हैव अ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एटलीस्ट कुछ प्लान तो होना पड़ेगा आपका कि अब ये डिग्री को हम कैसे मोनेटाइज करें, हम क्या करें एग्जैक्टली, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट इज माय वीकनेस, व्हाट आर द एरियाज आई नीड टू इम्प्रूव। तो एक चार्ट बनाइए, अपना एक डायरी रखिए कि दिस इज माय स्ट्रेंथ, दिस इज माय वीकनेस, दिस इज द अपॉर्चुनिटी आई कैन हेल्प। तो ये मेरा 5 इयर्स का मेरा ये गोल है, मेरे को ये चीज इंप्रूव करना है अपने आप में, ये चीज मेरा अच्छा स्ट्रेंथ है, तो इसके ऊपर कैपिटलाइज करेंगे। तो वो प्लान होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री दैट यू आर हैविंग। अगर प्लान बना लोगे ना एंड एग्जीक्यूट करने लग जाओगे, आई एम टेलिंग यू, अगर प्लान बना लिए ना 50% भी एग्जीक्यूट करने लग जाए, बहुत सही रास्ता में जा रहे हो। पर अगर आपके पास प्लान ही नहीं है ना ऑन द फर्स्ट हैंड, यू डोंट हैव एनी प्लान, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रगल होगा आपका। एंड जो आपको बोलता है, जो भी लोग बोलता है कि आई फॉलो द प्रोसेस, आई फॉलो द प्रोसेस, ये गलत है। दे ऑल हैव अ प्लान इन माइंड, they are having a plan in mind, they are going with the flow, but they are having certain amount of planning in mind कि क्या करना है exactly, they are knowing कि कैसे मैट्रिक्स है, कैसे बन रहा है पैसा, तो they are actually knowing कि what they are doing। तो वो चीज मेरा मानना है कि आपको हमेशा लाइफ में कुछ प्लानिंग करके चलना कुछ हद तक जरूरी है। डेफिनेटली प्लान सबका जैसे आप बना रहे हो वैसे नहीं होगा, नो बडी हो सकता है कि आप प्लान जैसे बना रहे हो वैसे होगा, पर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। भोजन मेरे को पूछता है, प्लानिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिना प्लानिंग का सीए भी नहीं निकलता, मैं तो बोल रहा हूँ। तो प्लानिंग इज अ सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ हाँ, प्लानिंग होना जरूरी है, फिर कोशिश करिए एग्जीक्यूशन आपका बेस्ट हो, जैसा प्लान अकॉर्डिंगली किया है। बट डेफिनेटली प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यू शुड बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ प्लान कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको कैसे प्लान आउट करना है अपना जर्नी को। बिकॉज आप छोटा छोटा प्लान बनाइए, नेक्स्ट 2 साल 5 साल का प्लान बनाइए। तो अगर बड़ा प्लान बनाने में कोई दिक्कत होता है तो नेक्स्ट 1 ईयर, 2 इयर्स, 5 इयर्स में आपको प्लान कैसे करना है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम आई सी इन ईच एंड एवरी यूथ, दिस इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। 20 to 25 ईयर ओल्ड वेस्ट कर रहा है अपना टाइम इंस्टाग्राम का रील देख के, वो देख के, मतलब कंटेंट इतना कंज्यूम कर रहा है, पर कंटेंट कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, उसको क्रिएट करके उसको कंटेंट से कुछ ना कुछ मान के चलिए। बहुत बहुत लोग हैं बुक पढ़ते रहते हैं, अब इतना बुक पढ़ लिया, पर बुक से आप बुक पढ़ के अगर उस बुक को आप नॉलेज को काम में नहीं लगाएंगे तो बुक पढ़ के क्या फायदा हुआ, कितना ही नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं हुआ। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी चीज कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ कि मैं ये बुक से ये लेसन सीखा हूं, अब इसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके कुछ ना कुछ करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज समवेयर और द अदर, एंड दैट इज हाउ यू विल करेक्ट। ग्रो इन लाइफ। तो ये मेरा सजेशन सबके साथ ही रहेगा कि प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज योर टाइम इफेक्टिवली, हैव अ प्लान इन माइंड। कहीं कुछ दिक्कत आपको लग रहा है, कोई सजेशन आपको चाहिए, तो आवर व्हाट्सएप नंबर इज देयर, we will try to help you as much as time is available with us। but definitely you should be doing, everybody your CA, MBA, CS, CMA जो भी है, you should be having a plan। बिना प्लान का आगे नहीं बढ़ पाएगा लाइफ में। यू शुड बी मेकिंग सम प्लान्स, भले आप रिजेक्शन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर से मत डरिए, फेलियर से मत डरिए, फेल होना कोई वो नहीं है। यू शुड बी टेकिंग सम रिस्क, दिस इज टाइम 20 to 30 years old, यू शुड बी टेकिंग सम रिस्क, यू शुड बी मेकिंग सम प्लान्स। बिना प्लान का बस एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, वो गलती हो जाएगा। तो दिस इज माय पीस ऑफ सजेशन। आई होप दिस discussion was will be helpful for many people। Anything last you want to say in your also view कि क्या पर कुछ Yes, इम्प्रूवमेंट sir. कर सकते हैं कोई? Yeah, I would just like to add कि ना whatever you prepare, हम्म, most of the time try to see things how it works practically, क्योंकि right, इंटरव्यूज में आजकल बहुत प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं। बहुत कुछ। how the process how the process goes and what have you actually done। they One of the interview they told me कि ये जो तुमने बुक में पढ़ा है वो तो ठीक है, don't tell me that anything, हम्म, you tell me what हाँ, actually happens and what else। So go through the वही। process once and how everything is done, so that you can explain to the interview that you know the process and you can also you are aware of the processes। So practical knowledge हाँ, पे ज्यादा राइट ध्यान राइट राइट। इसके पीछे ये कारण भी है कि वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज 1000 1500 हाँ, है, ये 20 25 हजार है। तो ये लोग को करेक्ट उसी करेक्ट को लेना करेक्ट। है जिसको काम आता है। दे डोंट आता है, वांट यू करेक्ट टू, करेक्ट। हाँ, ये लोग आपको सिखाएगा नहीं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं, चीज पक्का है कि अब आपको वो लोग उसको ही ले रहा है जिसको काम बहुत हद तक आता है और जिसने प्रैक्टिकली किया है कि वो अब आर्टिकल्स को काम सिखा सके। अब ये चीज करेक्ट बहुत जरूरी है। सीए फ्रेशर नहीं रिया, उसको ऑलरेडी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको बहुत लेवल तक काम आएगा। इवन मेरे को भी दिक्कत यही आया था जब हम सीए फ्रेशर बन के जॉब में गया था, तो हमको भी था कि मेरे को कोई सीनियर आके गाइड करेगा, वो देगा नहीं, उल्टा हमको आर्टिकल दे दी, इनको आपको गाइड करना है। और मैं तो जब हम लोग अगर आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सीए फॉर्म ऑल्सो, तो मैंने अच्छा अच्छा काम किया विद गॉड ग्रेस। डेफिनेटली मेरे को बोल दिया गया कि आर्टिकल को सीखो, और आई एम टेलिंग यू आर्टिकल्स आर डैम टैलेंटेड इन अ गुड फॉर्म। आपका आर्टिकल जो 3rd ईयर का होगा वो बहुत टैलेंटेड आर्टिकल होगा।
अगर वो अच्छा छोटा फर्म से भी निकल करेक्ट। गया है, उसको वो फर्म के बारे में सब कुछ पता है, उसको क्या ही सिखाएगा, उससे तो हम लोग सीखेगा। हाँ, हाँ, वही करेक्ट एक करेक्ट। सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि हाँ, सब यू और यस। जब आप सीए बन के जाएगा तो आप देखिएगा आर्टिकल जो थर्ड ईयर का होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग आपसे ज्यादा टैलेंटेड होगा। तो उस टाइम आपको जो कोशिश ये करना है कि उसको अच्छा दोस्त बना के उससे सीखिए, बिकॉज वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। अगर आप उसके साथ, मैं तो देखा हूँ कि जो थर्ड ईयर का आर्टिकल होता है सीए फ्रेशर, उसके साथ अच्छा दोस्ती रखिएगा, बिकॉज वो बहुत आपको ठीक है, काम हाँ। सिखा सकता है। डेफिनेटली करेक्ट मैं करेक्ट। थर्ड ईयर का आर्टिकल जो भी मैंने देखा है, वो लोग आपका बहुत अच्छा मेंटर बन सकता है। तो उसको अच्छा से उससे अगर आप काम सीख लोगे, क्योंकि वो अच्छा से सिखा देता है, बिकॉज एक तो आपसे छोटा होता है तो आपको काम भी सिखा देता है। करेक्ट। बियर सेल्फी सिखा आपको दे। नहीं सिखा देगा, वो आपको काम भी सिखा देगा, आपको करियर, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बता देता है, और फिर आपको डील भी कर पाता है अपना, क्योंकि 3 साल आर्टिकलशिप कर लिया ना आपका फॉर्म है। तो मैंने तो हम्म, ये करके मैंने बहुत कुछ काम सीखा था कि मैंने जो आर्टिकल्स करेक्ट। होता है, जो थर्ड ईयर का होता है, वो लोग से काम अच्छा खासा मैं समझ लेता था, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सब कुछ। तो वो एक आपका प्रो टिप है, अगर आप सीए फ्रेशर बन के कोई जॉब में पे आपका लगा भी है, आपको यस। दिक्कत आ रहा है जॉब में, बिकॉज आपको बोल दिया जाएगा ये आर्टिकल से डील करो, उससे करो, इसको काम कराओ, ये काम करके दो, और आपको कैसे करे आपको समझ में नहीं आ रहा है, नोबडी इज टीचिंग यू एनीथिंग। तो प्लीज दिस इज अ प्रो टिप, थर्ड ईयर आर्टिकल को पकड़िए, उससे दोस्ती करिए, सीट ले, उसके साथ अच्छा रिलेशन रखिए, बिकॉज थर्ड ईयर आर्टिकल को बहुत कुछ आता है। तो थर्ड ईयर आर्टिकल को बहुत अच्छा नॉलेज होगा, याद रखिएगा। अच्छा स्पेशली अच्छा। अगर वो बिग फोर टॉप 20 सीएफ हम कहीं से भी करके आ रहा है, तो थर्ड ईयर आर्टिकल विल बी वेरी नॉलेजेबल मोस्ट ऑफ द केसेस में। करेक्ट तो उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखिए, बहुत कुछ काम सीख जाएंगे। और वो थोड़ा बहुत आपको करेक्ट। बोल भी देना, कुछ कुछ थर्ड ईयर आर्टिकल आपको कुछ बोल भी देता है कि तुमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, सुन लीजिए, कुछ नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है, अभी आपको काम सीखना है। तो किसी को भी आपको काम सीखने के लिए आपको छोटा बड़ा मत समझिए कि मैं इससे किससे पूछ लूं, यस। कि मेरे से छोटा है, इसको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। डोंट कीप दैट इन माइंडसेट। आपको मेन चीज ये करना है कि आपको 1-2 ईयर्स एकदम काम सीखने में ध्यान देना है। और कोई कुछ बोल भी करेक्ट। देता है आपको इन बॉस, डेफिनेटली आप जब जॉब में करेगा तो डेफिनेटली आपको बात सुनाएगा कि आपको सीए बन के आपको ये काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता डेफिनेटली। और ये चीज को लेके भी लोग बहुत वो हो जाता है, ये चीज बहुत कॉमन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द टाइम व्हेन यू मेक श्योर दैट आपको हम्बल रह के काम सीखने में ध्यान देना है। और आपको डेफिनेटली डांट मिलेगा, आपको बात सुनाया जाएगा, आपको पर्सनल कमेंट भी बोल सकता है। यू शुड बी एबल टू टेक दिस इन द पॉजिटिव सेंस एंड मेक श्योर कि 1-2 ईयर्स हमको काम सीखना है। आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू लर्न थिंग्स। और आपको गलती कम से कम करने का भी कोशिश करना है। अगर आपको गलती, अगर बार बार एक जैसा गलती कर रहा है, तो मेक श्योर अपना काम को रिव्यू करा लीजिए, तो आप बॉस को दिखाने से पहले, तो उससे आप डांट भी कम खाएगा, इंप्रेशन भी कम खराब होगा आपका। तो वो सब चीजें प्रो टिप है, जो बहुत सीए को मैंने देखा फर्स्ट ईयर जब वो जॉब में कहीं पर भी इसका लगता है, तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत ये चीज को आएगा। और अभी ऐसे भी प्रेशर, वैकेंसीज कम है, ले ऑफ का सीजन है, तो ये चीज ज्यादा आपके ऊपर में प्रेशर रहेगा। जो भी जब भी जॉब में जो जाएगा, इसके ऊपर में प्रेशर डेफिनेटली रहेगा कि कोई काम सिखाएगा डेफिनेटली। नहीं। प्लस आपके ऊपर में डेडलाइन का प्रेशर रहने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप बॉन्डिंग अच्छा करो, रिलेशन रखो, अपना टीममेट्स के साथ अच्छा रिलेशन रखो, लंच ब्रेक वगैरह जो भी चीज है, मेक श्योर यू हैव अ वेरी गुड रिलेशन ऑफ ऑफ रिलेशन भी बहुत रखो। एंड बॉस के साथ तो डेफिनेटली अच्छा रिलेशन रखना है। तो ये चीज आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। इसलिए मतलब कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग विच इज व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल स्किल्स, ये सारा इंटेलिजेंस, ये सब बहुत काम आता है। आपको काम नहीं भी आता है। आता है, आप ना थोड़ा अगर बॉन्डिंग अच्छा रखेगा, तो आप काम निकलवा सकते हैं अपना, और आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। ये चीज है, ये चीज के यस ऊपर यस। भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि बीच मेक श्योर कि आप लोग ये सब में भी ध्यान दिया जाए। और एक चीज और है कि यूर बिकमिंग अ प्रोफेशनल, ओके नाउ सीए, तो मेक श्योर कि कोई भी कभी भी काम आ सकता है। तो make sure करेक्ट that you maintain a very very good relation with each and every person in the CA fraternity, outside the CA करेक्ट। fraternity। कब कौन कब काम आ जाए, you will never know। तो make विल नो, sure that you यस have a यस। very strong relation with everybody, because कौन कभी भी काम आ सकता है। मैं 5 years में देखा हूँ, मैंने कितना हो सके अच्छा रिलेशन रखा है। और कौन कब काम आया, मैंने कभी सोचा नहीं था ये आदमी मेरा काम आ सकता है, वो आ सकता है, पर कोई कब काम आ जाएगा, यू विल नेवर नो। ऐसा ठीक पता है, नहीं। तो हाँ ये चीज है। तो यू मेंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर आर्टिकलशिप फर्म्स, इवन जो सीए फर्म का आर्टिकलशिप फर्म्स है उसके साथ भी अच्छा रिलेशन रखो। और अच्छा ये रिलेशन। सारा चीज बहुत काम आएगा, कब कौन काम आएगा, यू विल नेवर नो। ठीक है, ठीक है, नो, थैंक यू यस। सो मच, आई थिंक दिस इज ग्रेट। एंड यस डू यस। फॉलो आवर चैनल एज यस वेल, थैंक्स। थैंक यू। यस यस, ठीक थैंक यू सर, यस। है।